Welcome to the first day and the one-day workshop on the Say It Right, the art of meaningful communication. And today it is based on the इनकी आवाज ही interaction. नहीं आ रही की वजह सर मेरी आवाज आ रही है है? आपको? मैम आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल प्लीज अच्छा कंटिन्यू बिल्कुल जी ठीक है। जी जी So मैडम we आपकी are आवाज just आ रही है, going आप to be shift कंटिन्यू करें into प्लीज। English and Urdu. We will keep shifting from one language to other to engage all the audience. And the main focus is going to be on the art of meaningful communication. I hope so. My slides are also going to give you a little bit benefit and a more understanding what we are talking about. This format is going to be followed, and it's not going to be a very lengthy one. I'm just going to summarize, and in a concise manner I'm going to explain it as what we think of the effective communication or the meaningful communication. Meaningful communication goes mainly and simply exchanging of words, and it's all about creating, connecting, and understanding of the other viewpoint. It includes the active listening, empathy, and a genuine desire to understand the view of the other person as well. Communication is always considered as an art of communication, and it's an art. And to achieve that sort of communication and the art, one tries to get into the deeper level of understanding. And in a meaningful communication, we have to take out the meaning out of our conversation. We have to give a valuable feedback and the valuable qualities that's going to be discussed. We have to discuss the flaws as well, the weaknesses as well, but considering them as a constructive criticism. Don't ever, I must force on that, and I always tell my students, please don't disheartened by the criticism. Take it as a positive criticism. When you have a mentor and a teacher is in front of you, he or she is going to guide you, and he has the full authority to guide you. He has that label and authority. And if you're going to demoralize by the feedback or the criticism, by considering it is a negative, you will never be able to excel. Because when you're going to have a harder time and going to realize your weaknesses, that is the right point. You're going to grab your weaknesses and going to improve if you have a positive mindset. It has been said effective communication helps to keep the team working in the right direction with the right attitude. Are we all following this up? But I don't think so. We are not very constructive, being not very mature at this level, being when we're going to talk about bachelor's level. You are going when you are going to have a maturity and going to have a positive mindset and going to receive the feedback as a constructive criticism, a lot of criticism and the bravery can be seen from you. This workshop is not only going to cater on the lecture that is going to receive affirming strengths and providing reflection that leads to deeper engagement and surely will build stronger relationships. I would like to give a very, very brief and in a concise manner regarding the communication and the language and its importance. When we go back in the history, how the language being a communication tool invented, we can see that in the historical perspective that a lot of theories were formed, just like the divine soul, the national source theory, the social interaction, the genetic soul, the tool making source. But why?
because there was a requirement at that time to communicate from each other. So we are not going to get into the detail of it. We are just touching it up just to have an ample mindset how the language and the communication are interrelated. Then again, are going to see a lot of other theories when with the imitation of animal sounds, expression of emotion, coordination while working together, by the environmental sounds. Other theories are also in front of us. When we're going to talk about in the recent times, we have very different types of communication: verbal, non-verbal, written, visual, listening. These are the parts or different types of communication that is a very essential for the effective communication. And do we have these all, and how we are going to be effective in communicating our message? Strong professional and interpersonal relationships are created by having good communication skills. And there are tons and tons of communications tools that we can use. And today we are using a lot of them. For example, you are using a lot of social media platforms, the text and messages, your email, a lot of other things, phone calls. You have to see from the other perspective also, is your message being communicated the way you want it to be heard? Is it the same? When we are going to talk about the compassionate communication, it involves a deep listening and the understanding. When we're going to talk, let us a clearer mind from this. What is effective communication? We have to listen into the deeply and understanding it. When we are going to hear other person, you have to understand what he tries to say. Many times happens the interpretation is going to be taken wrongly. Then the one is requiring to clarify that thing. It is happening in our daily lives. It is always said that be honest, don't overstate things, maintain consistency, speak in calmer manner, and a lot of other religions also communicating this with us. When we talk about the encoding and the decoding messages, here comes, is our message is being given or interpreted the same? What are the causes that are interrupting the messages? But that decoding information that must be interpreted and translated in the form that can be understood. How we are going to do that? It is all going to be practiced by our practical exercises today. We're just going to have a little brief what sort of communication we are having in our daily lives and what sort of models we are following. Transmission model, interaction model, transactional model of communication is up to us. How effective we want to be in front of the other. Transmission, when only one-sided communication is going to be conveyed to the other person. It happens in the form of a radio exam. We can take the example of a radio, the transmission, and to capture the wider audience. When interaction model of communication, when we are interacting with the different people, we want to communicate as I am communicating with you, and you are going to give me the feedback as well. We are interacting, we are learning with each other. And sometimes there's a requirement of the transactional model of communication. According to this model, that creates social realities in relation to social, relational, and the cultural context. It is about building relationships, because on that basis, our communication is going to be more effective. And for your understanding, I would like to brief on that. There's a lot of other signals also that is, communicating messages to you. But the clarity, how you're going to be clear about that, sometimes is a requirement to be more descriptive. For that, how you're going to focus the 7 C's of communication. Clarity, complete, correct, concise, consideration, concrete, courtesy.
These are the things that are supposed to reflect from your communication. If you're using a textual site or a genre, you're speaking, you're writing, you're hearing, if these are going to be there, these all 7 C's of communication, the message is going to be interpreted positively and rightly. We have now, we are into the structuralism. When we're going to talk about the era where we are standing at a moment, we have all the English formed theories, language and communication formed theories, and this era is known as structuralism, the most recent and the latest one, which we are following in linguistics. It is a language is viewed as a tool for verbal communication. It is considered as a very vital and beneficial tool where we are conveying the meaning of the different concepts by having taking the help of the tool of verbal listening, whatever you are going to opt, any type of communication, but how you are going to convey that. Over here, there are a lot of other factors are involved. Maybe that's the situational factors. Maybe they are going to be the contextual factors that's going to affect your communication. So I'm not going to get into the theories of it. I just wanted to be very simple on that for your understanding, because we would like to learn from our activities. How we are going to learn it? We are just going to start from our icebreaker activity number 1. That I would like you to have any working life experience and where you have learned a lot, and that's your effective and impactful communication has occurred, and when you thought that your communication broke down and that taught you a lesson, you have to create some scene or situation in which you have already faced that. You can work in a group or 2 or 3, I think so. Your platform has already decided how you're going to work among yourself, and one person is going to perform, or the 2 persons are going to give me the feedback on that. Any situation, create the situation, explain it, how you are have faced it, and how they are the learning factors and the lessons from that. We are just going to start it. Jason, how we are going to start it? Are you going to distribute the members in the groups? Yes. Are you done with your presentation, ma'am? Yes. Well, side by side, the presentation is going to be there. Before the activity, I just wanted to highlight the effective communication. And because they're related with these activities, so they're a part of activities. I would like to start from the activity number 1. And here, I'm just going to repeat it. Any professional lives experience they have to create, and different styles and situation which shape their experiences, they have to create that. And we are just going to discuss that, and how we are just going to see their inputs from the effective communication point of view. Yeah, I hope so. Okay. Everybody has got the point. अच्छा एहसान, So how आपको many? समझ आ गई है ना हमारी एक्टिविटी, और हम ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं ना? अच्छा, इसका ये है मैम, sorry, जी, do you have only one activity or there are we more have than one 3 activity? activities. 3 जैसे activities करेंगे and ऐसा, हम 3 एक्टिविटीज है, एक के बाद मतलब एक ग्रुप अगर करेगा, हमने इसको खत्म करना है तकरीबन 9:30 ना, तो उसमें हमारी Yes. डिस्कशन भी चलेगी। मैं 2 या 3 ग्रुप्स की हम डिस्कशन करेंगे, देन वी विल गो टू द सेकंड एक्टिविटी। फिर 2 या 3 अगर हम मैनेज कर पाए, हम उनका फीडबैक लेंगे, बट पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी देयर। दे आर गोइंग टू सिलेक्ट वन पर्सन ना, फ्रॉम ईच yeah, ग्रुप।
तो इस तरीके से होगा तो हम मैनेज कर पाएंगे ना अपने टाइम में और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अच्छा मैडम, जी जी मैम डॉक्टर साहब जी जो डॉक्टर बात शुमाइला। हुई थी, जी यस यस सर, जी। आप कुछ मैम कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कितने ब्रेकआउट रूम कितने पर्सन असाइन करूँ? मैं ब्रेकआउट रूम बना लेता हूँ और हर ग्रुप अपने में से एक लीडर सेलेक्ट कर लेगा हु विल शेयर द डिस्कशन। आप मुझे ये बता दें एक ब्रेकआउट रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स करूँ? 3 आप 3 इज कर लो एनफ? ऑल टुगेदर। आप हो कितने? 12 हो अभी? 24? यू आर 24? 24। 24 तो 24 या ज्यादा बना लो नहीं बेशक, नहीं, हम क्योंकि हम ज्यादा 24 है। मैनेज तो कर नहीं साथ पाएंगे एक, इनपुट। आप ऐसा हाँ करें, साथ मेरे मेरी ख्याल में आवाज आ रही है आपको? पहले एक बात 6 ग्रुप बना ले मेरी आवाज, और 4 रख लें हर एक में। ओके अच्छा दैट। एहसान, मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है, आ रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि हम एक ही दफा में ब्रेकआउट रूम में जाते हैं, तो आई थिंक सो कि हम एक ही दफा में एक्टिविटी करके वापस आ जाएंगे, तो फिर हम हर बंदा अपना अपना जो पार्ट है वो प्रेजेंट कर लेगा, देन फिर मैडम जो है उसको कंक्लूड करेंगी उसमें, यानी हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेगा ना। तो मतलब जो मुझे सर से हमने जो डिस्कस किया था वो पॉइंट ये था कि वी हैव टू, आई थिंक सो कि हमें जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता गया है उस पर बात करनी है, और दूसरा ये कि हमने एक कम्युनिकेशन में हमें किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अब करना। मैडम ने 3 क्वेश्चन उठाए हैं ना, एक है कि जो आइस ब्रेकर वो ये है, हमारा ये होगा कि हम अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट? और वो कम्युनिकेशन के ऊपर होगा, राइट? और पहले व्हाट डू पहले यू ये थिंक कि एक्टिविटी है, वो और इम्पैक्टफुल सेकंड, कम्युनिकेशन क्या थी उसमें आपके लिए ना, और किस तरीके से वो लाइफ टाइम अच्छा एक्सपीरियंस आपका हुआ? यू आर गोइंग टू फिगर इट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके 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 ओके। अच्छा तो ऐसे करते हैं कि हम ब्रेकआउट रूम में जाते हैं, सादा ब्रेकआउट रूम बनाएं, तो उसमें हम सबने सवाल, हमारा सबके सामने ये है कि आपने अपनी, एक तो ये है कि हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके ख्याल में क्या है और किन से हमें अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा आपने अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना है जो इम्पैक्टफुल था आपके ख्याल में, और एक कम्युनिकेशन के लिहाज से। आई थिंक सो कि सारे पार्टिसिपेंट्स को समझ आ गई है हम क्या कर रहे हैं। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस मैम। मैम। I was blocked. I couldn't able to do that. I had to rejoin G. मैम ट्रस्ट मी, इट Now, वाजंट I मी। was in room. No, I think so. I thought that control is under you, but you have done a wonderful job, sir. थैंक यू। That was very quick and अच्छे हमें rooms दिया आपने, है ना? And we had a good discussion and a very timely discussion. Good work. Now we have discussed with Mohammed Saad Saab and Dr. Saiba 2 different occasions. So we are just going to invite them again to just give us a little bit summary of that. थोड़ा सा हम बताएंगे। डॉक्टर साहिबा ने जो हमें बताया है रूम 6 में कि उनका लैक ऑफ ट्रस्ट हमारे सामने आया। टू कोलीग्स, उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था उन पे शक किया गया कि जैसे वो रिकॉर्डिंग कर रहा है दूसरा बंदा, जबकि वो सामने और हाथ में होता है। और उन्होंने उनको बताया कि जी आई एम नॉट डूइंग दैट। अब इसमें इतना ये आया क्यों? कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स क्या थे ये, और इस लेवल पे लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप क्यों हुआ? इसका बैकग्राउंड क्या है? वी हैव टू गेट इनटू दैट। उनका रिलेशन कैसा था अपने एम्प्लॉय के साथ, और वो क्यों इतनी थी टची थी कि उनकी कुछ चीज को कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, या उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो हमें इस बात पे गौर करना है, या उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। तो ये यकीनन कोई इसका बैकग्राउंड है जहां से ये लैक ऑफ ट्रस्ट हमें नजर आता है। कैन वी हैव अ लिटिल बिट feedback from your side, Dr. Saiba, from the room 6? यस यस मैम, आई थिंक सो कि हम ग्रुप लीडर्स को कहते हैं उनको कि आप ब्रीफली जो है ना, जो आपने एक्टिविटी की है अभी ग्रुप के अंदर, वो वो तो हमसे हम शेयर करेंगे करें जी। अब कि बात उन्होंने से आप वो बताते हैं या इफेक्टिव डॉक्टर साहिबा कम्युनिकेशन की। बताते हैं, एनीवन ना, दोनों पे हम जरा सा कर लेते हैं यस डिस्कस। यस यस, अलीना है हमारे साथ। अलीना आप हमारे ग्रुप में थी ना? अलीना आप शेयर करें, आपने नोट्स लिए थे, हमने क्या बात की थी? बिल्कुल I ठीक है I am here. I'm here. जी। एनीबडी जी। Okay, so I was in. I think we were in room 3, if I'm not ओके wrong. ओके। Okay, so I'm Alina, and my group members were, one of them were Sir Khalid, and the other one was Dr. Shumaila. So when we were talking about effective communication,
According to one of my members, Sir Khalid, he raised a very good point that clarity of mind is very important when you're talking about something, or communicating something with another person. So, and Dr. Shumaila said that the tone is very important. That's another point, like, how you are presenting. Like, you shouldn't sound very authoritative or very dominating. It should be very delicate, polite, and professional, your tone. And what I thought was that inclusivity, like language is very important, and inclusivity, like you should communicate your thoughts and feelings in a way that no one feels left out, even if it's, What was the case, by the way? आपका वो issue क्या था जिस पे आपने ये कहा कि that was effective communication हुई, resolve हो गया, क्या था आपका personal experience? Yes, so Sir Khalid gave a very positive example of effective communication. He said that he was once at an international platform and people were talking about teachers' education in Pakistan. So the person who had the mic or, had the opportunity to speak on everyone's behalf, that person couldn't do it with the clarity of mind and clarity of thought. So my group member, Sir Khalid, he shared that he had to intervene and take charge for a moment, and then everything was sorted out and people were able to get the message. अगर वो चीज ना होती, अगर ये I'm just going to stop it के साथ साथ हम उसको क्लियर करें, और यकीनन ये आप लोगों ने फील किया, उन्होंने एंटर हुए, उस बात में इंटरवीन किया, अगर ना होते तो मैसेज रॉन्गली आगे जाता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है ना, और वो अफेक्टिव ना जाता उनका मैसेज। उसको क्लियर करने के लिए दूसरे को हेल्प आउट करना पड़ा, उन्होंने रियलाइज किया। इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट, दूसरे बंदे ने रियलाइज किया। Exactly. And I had another example in mind, like my personal experience. It was similar to his, and we also shared that, like I shared it with them, that once I was in a group setting at a university, and we were just talking about something like, when you're sharing your lecture notes in a very informal way, and sort of like when students sit together. So I realized that one of the members, we were sitting in a cafe or, thing like that. So उसको एक उनमें मेंबर था, उसको समझ बात ठीक से नहीं आ रही थी, and I realized after a while that he couldn't really understand English that well, like he didn't have command on English. He was, know how to, लेकिन command नहीं थी language में, fluency. बिल्कुल So I had to stop. That's a good realization. Good Yes. job. अच्छा, इसमें अब क्या है, अब आपका ऑडियंस कौन है, ठीक है, अब ये हर ये अपना गौर नहीं करता, बट इन पाकिस्तान बीइंग अ स्टूडेंट एट दिस लेवल, हमें पता है अंग्रेजी समझ सबको आती है, लेकिन हमें फ्लक्चुएट होना पड़ता है उर्दू और इंग्लिश में, क्यों? हर कोई नहीं उसको समझ सकता। We can take the example of Quaid-e-Azam University student. Why Quaid-e-Azam? It's the best university because it has a quota system here, and we can have a lot of students from Balochistan, from Swat, KPK, वो रीजनल उनमें आपको नजर आते हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो लैंग्वेज है, उनका लैंग्वेज बैरियर भी है, बट दे आर गुड स्टूडेंट्स आल्सो। तो उसके लिए आपको शिफ्ट ओवर करना है, ना कि आपको इम्पोज करना है। एंड एज अ टीचर, एज अ लीडर, आपने उन पे इतना प्रेशर नहीं डालना कि आपकी बात ही वो समझ ना आए और वो बाद में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल हो रहा हो, उसको समझाने की कोशिश आपने करनी है। दैट इज द रीजन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। हम ये नहीं है कि अंग्रेजी को बिल्कुल हम छोड़ देंगे, ये तो हमारा मीडियम है, इसको लेकर चलना है, बट अपना हमारा जो डिस्कशन होती है हम उसको उर्दू में भी करते हैं, इंग्लिश में। अब प्रेजेंटेशन में हम बुलाते कहते हैं मैम हम फ्लुएंट नहीं है और बिल्कुल नहीं इंग्लिश में बोल सकते, लेकिन मैंने कहा 2 लाइनें ही बोलो, आपको अपना बैरियर ब्रेक करना है, एंड वहां क्या वो फर्स्ट स्टेप है जो वो लेते हैं, और वो इनिशियली, और एक दफा गलती इनिशियली होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बच्चे ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वी कैन सी कि उन्होंने वो अंडरस्टैंड किया, परफॉर्मेंस उनकी नजर आती है, तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि परफॉर्मेंस आगे जाके इंप्रूव नजर आ रही है। तो दीज आर द थिंग्स कि हमें अपनी एम्पैथी, हमने वो बात की, मैंने आपको इस सारे लेक्चर से मैं अब जोड़ूंगी आपकी बातें, हमने एम्पैथी भी दिखाई अपनी, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई, और उनको समझा, हमने इम्पोज नहीं करना,
हमने कभी भी अपने आप को, यानी कि वी आर मास्टर इन एवरीथिंग, only the God is master in everything. You have something, you have to convey to the other people, to say it and understand effectively. That should be your mission, instead of imposing whatever you are saying. And how we are going to clarify this point? By different discussions, by different examples. Is this room over? Can we go to the other? Yes, ma'am. Yeah. Thank you so much. यस मैम, Excellent. यस हम जी, अगले जी। रूम की तरफ जाएंगे। हमारा फर्स्ट रूम कौन था, और कौन अपने रूम को थोड़ा सा एक्सप्लेन That was करेगा कि third उन्होंने room. क्या कहा? We have total 6 rooms. That is Yes. the third room. जी, यस इट वाज थर्ड रूम। जी। जी एहसान, आपके रूम में जी कौन जी था? जी, हाँ, रूम 2 था, मेरे साथ 7 थे, और मेरे साथ लैला थी, इकरा थी, ओके। और जी जी। थोड़ा सा ब्रीफली और एहसान आप ही? लाइन पे बता दीजिए जी कि क्या सिचुएशन थी, और क्या आपने उसमें लेसन आपको मिला, और कैसे उस चीज को सॉल्व किया या नहीं सॉल्व हो रही थी, क्या वीकनेसेस आई आपकी उस कम्युनिकेशन में, जो भी इशू आपका इवेंट था? हम्म। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेंट्स की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टोन ऑफ द मैसेज, एग्जैक्टली। इट शुड बी कंसाइज, ट्रू। yeah, and anxiety is a big disruption in communication, and practice makes communication perfect, वेरी राइट। and self confidence and experience makes it improved, बिल्कुल। and self imagination and environment uh, plays a big role in effective communication. वेरी ट्रू जी। Yeah, these were बिल्कुल, some ये आप points. लोगों ने रियलाइज किया, आपकी जो भी सिचुएशन थी, अगर मैं वो सारी स्टोरी अगर सुनूंगी तो मेरे ख्याल से और ग्रुप्स भी रह जाएंगे, बट दीज आर ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स जो आपने अपनी सिचुएशन से रियलाइज किए हैं, और दैट्स जी लेसन फॉर यू ऑल्सो। बात जगह होगा कि किसी ने मुझे बताया कि कोई ऐसा कोलीग्स थे कि उनका आपस में कोई नहीं प्रेजेंट कर पा रहे थे, दूसरा उसमें एंटर हुआ, उनको एक्सप्लेन किया, दैट वाज अ ड्रॉबैक, दूसरे ने समझा, और आई होप सो जिनकी वीकनेसेस थी उन्होंने इससे एक लेसन लिया और उसमें अपने आप को इम्प्रूव किया होगा। तो दैट इज नॉन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन अ ग्रुप, आपने अपने साथ एक तहिया करके आना है कि आपने दूसरे को अपने बात को बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। डोंट फॉरगेट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो बात आप नहीं करेंगे तो आपका अपना मकसद पूरा नहीं होगा। कैन वी हैव द अदर ग्रुप प्लीज? यस नेक्स्ट ग्रुप में कौन था? इनायत, आपके ग्रुप में कौन था? मेरे साथ ग्रुप में ताहिरा काजमी थी, जी एक जर्नलिस्ट है, मैं तो चाहता हूँ वो प्रेजेंट करी। मैडम है आप? जी, आई एम हियर। नहीं ताहिरा नहीं काजमी, किससे सायरा बात कर रहे? आपके ग्रुप नहीं में। नहीं वो ताहिरा काजमी है डॉक्टर साहब, ताहिरा वो होंगी। जी जी आई वाज इन द ग्रुप जी जी 6। ताहिरा या जी, यस वो ग्रुप 6 में थी मेरे साथ, 5 में। ओ तो हमने जो बात की वो उन्होंने कहा कि मैं जब बात करती हूँ तो उनसे उनके एकेडमिक्स और इन चीज़ों के बारे में पूछती हूँ फिर, लेकिन एक ड्रॉबैक जो उन्होंने बताया अपना, कि लोग आगे कैसे बढ़ जाती है, नंबर वगैरह शेयर कैसे करती है। ये एक उनके लिए एक ड्रॉबैक था। मैंने जो बात की वो ये कि बेजरूरत हर तकल्लुफ हर दिखावा छूट जाए, बेजरूरत हर तकल्लुफ हर दिखावा छूट जाए, सादगी सी बात हो तो बात खुलती जाए फिर। तो जब ये चीजें ना हो, ये 7 C's और ये चीजें हम तो कम्युनिकेशन में पढ़ती है, ये चीजें हो, इसके साथ नॉन वर्बल जो बिहेवियर होता है बंदे का, जो कि 90% ऑफ कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट शुड बी वेरी कंसिडरेबल एंड वी शुड नॉट अवॉइड सच थिंग्स। और उसके साथ एक ये बात अच्छा की मैंने इनायत, जो और पॉइंट आप सादगी की लहजा जी आप सादगी की बात कर रहे हैं ना, जो हम समझ सकें कि जी आपने कहा है कि बात सादा हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरों तक कम्युनिकेट हो सकती है, राइट? जी जी जी। अच्छा जी। अच्छा और अब कुछ आप मजीद? जी, कोई और पॉइंट्स जी, आपके कोई इशू में से आपने जो लेसन लिया हो, कोई ऐसा चीज क्रिएट हुई है कि वो सादगी की बात अगर कर रहे हैं, क्या उसमें सादगी नहीं थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, अंडरस्टैंडिंग, कोई भी आपने अपने वर्क लाइफ में से कोई इशू को डिस्कस किया होगा, उसमें से आपने पिन पॉइंट की ये चीजें, राइट अनायत साहब? जी जी जी, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस थी?
क्या आपने कॉम्प्लिकेशन ये रिकॉल होती की? है कि बंदा जब कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, कम्प्लेक्स, मैं तो स्पेशली साइकोलॉजी का वो ग्रेजुएट हूँ, तो कम्युनिकेशन का हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं कि बंदा किस तरह आसानी से अपनी बात को आप तक पहुंचा सकता है। जी कभी अगर क्लाइंट के साथ भी हम डील करते हैं तो जी क्लाइंट जब क्लियर अपने आप के साथ, या वो चीजों को इस तरह मिक्सअप कर देता, सादा बता, तो फिर थेरेपिस्ट के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए ये मुश्किल होता है। तो चीजों के लिए हम जैसे चलिए, इट्स अ गुड लेसन कि आपने सादगी पे, कि आपकी ब्रेक हो रही है आवाज, हम उसको जरा कट शॉर्ट भी करेंगे जी। गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड एंड वी फुली अग्री विथ यू जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सादगी से बताइए। बाज लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बताते ही चले जा रहे होते हैं और दूसरे का फीडबैक का भी इंतजार नहीं कर रहे होते कि दूसरे को समझ आ भी रही है कि नहीं। अगर एक अनपढ़ इंसान के सामने आप जा रहे हैं और आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये मैं कहती हूँ आपने उसका जहन को समझा नहीं है। आपको भी उसके लेवल पे आके कुछ चीज बतानी है तो उसको आसान अल्फाजात में बताना पड़ेगा, फिर आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। टोन, लहजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैटर्स अ लॉट। अगर आप किसी को कहते हैं आई रियली हेट दिस वर्क ऑफ योर्स, आप गुस्से से कह रहे हैं, और दूसरा बंदा भी पीछे हट जाएगा 10 कदम आपसे। If you're going to see it's a lovely thing you have created for us, तो वो तो बाग बाग हो गया दिल। तो टोन, अल्फाजात आपके मैटर करते हैं जी। वेरी राइटली डन जी। कैन वी शिफ्ट टू द अदर यस ग्रुप? प्लीज। शफीक चौधरी साहब, आप थे किसी ग्रुप में? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम जी आपको माइक प्लीज। देते हैं। नहीं जी, मैं ग्रुपिंग के वैसे ही खिलाफ हूँ, तो मैं तो इम्पार्शियल सा बंदा हूँ। We have enjoyed sir your comments. That's a very plus point, very positive सर बड़ी point. अच्छी पंजाबी बोलते हैं सर, पंजाबी में बहुत आए ना कि क्यों आप ग्रुप्स के खिलाफ हैं। और नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस वो जो हमारा है ना, जी रवैया बुनियादी तौर पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाला और उसको अपने आप से हटाने वाला, ये उस हवाले से बेसिकली तो कमेंट था। मैं ज्वाइन करना था, लेकिन ये मेरे ऑफिस आवर्स हैं, तो ये फाइनल वीक चल रहा है प्रेजेंटेशन वगैरह का, तो कुछ स्टूडेंट्स जो पहले सो रहे थे वो अब जाग गए हैं, तो आगे। बस अब वो आ रहे हैं धड़ाधड़, तो इसलिए देर से ज्वाइन किया जब भी मौका मिला। Thank you so तो much for your presence, sir, and your inputs, please, sir. देखें, अभी तक जो कॉन्वर्सेशन है वो जी मैंने ठीक है शफीक साहब। शफीक साहब, आप वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कमेंट कर दें। आई गेस यू कैन एज अ टीचर एज हाँ, वेल, अभी एंड ज्वाइन इन किया है आई थिंक यू स्कूल कैन में जी। कंट्रीब्यूट वेल। मैं आपको जो है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, तो सर शायद एक यूएमटी में प्रोफेसर अब्दुल समद साहब थे और एक राउत जलील साहब, एजुकेशन के और कम्युनिकेशन के बहुत कमाल लोग। तो एक दफा एक साहब कम्युनिकेशन के लिए बात करने आए, तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा, यार कम्युनिकेशन जो है ना, उसका पहला दर्जा ये है कि जो बंदा कहना चाहता है जिस तरह से, समझने वाले को उसी तरह समझ आ जाए। तो राव जलील साहब ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा, यार मैं तो सारी जिंदगी यही समझता रहा कि ये कम्युनिकेशन का आखिरी दर्जा है, जी कि आपने जो कहा अगले बंदे ने उसी तरह समझ लिया, तो मैं तो इसको आखिरी दर्जा ही समझता हूँ। तो अब प्रेजेंटर जो है, अब जाहिर है उन्होंने कहा कि अब इससे आगे क्या हो सकती है ना कम्युनिकेशन। जी तो अब उन्होंने कहा, फिर आप ये बताएं कि कम्युनिकेशन का पहला जो है ना दर्जा वो क्या है। तो उन्होंने कहा, यार कम्युनिकेशन का पहला दर्जा ये है कि जिस बंदे ने कोई बात कहनी है ना, उसे खुद से पता हो कि मैंने क्या कहना है। जी ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, वो जितनी क्लैरिटी क्लैरिटी। होगी आपके अंदर, ट्रू। और जितना आप अगले बंदे को समझते होंगे, जी these are the two things that will help you। ट्रू। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बाबर साहब ने मुझे मशहूर किया हुआ है कि ये मुश्किल बातें आसानी से समझा देता है।
तो एक दफा उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा यार ये आप जरा इसको आसानी से समझा दें। मैंने जी कहा ये मुझे इतना नहीं आता कि आसानी से समझा सकूं। सो जो है ना, कोर जो जी कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेट करे, लेकिन उस कम्युनिकेशन से पहले उसको, अब उसकी अपनी जो क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर वेरी ये अगला बंदा है कौन। अगर आप सीरत देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जो भी कम्युनिकेशन है वो अगले बंदे के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए है। बिल्कुल ठीक सर। यानी एक ही किस्म का सवाल मुख्तलिफ लोगों ने किया होगा, लेकिन हर बंदे को जो जवाब दिया गया है वो उस टोन में, उस हवाले से, उस सूरत से दिया गया है कि अगले बंदे को समझ आ जाए। वेरी तो ट्रू ये सर, वेरी ट्रू अंडरस्टैंड। सर। एंड इसको अगर मैं थ्योरी के साथ जोड़ूंगी तो मैं इसको कहूंगी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। And as per the Halliday 1978, by looking into the linguistics theory, उससे मैं मिलाना चाहूंगी ये हर चीज का सर कॉन्टेक्स्ट होता है। एक तो सिचुएशन, उसमें फुकॉल्ट की भी बात आ जाती है सर कि हर चीज आपको कुछ कम्युनिकेट करती है। यू हैव टू गेट इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, फिर आपको वो मीनिंग पता चलेगा। सर बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू की सर। वी हैव अदर एक्टिविटीज आल्सो सर, आपकी इजाजत से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड सर। थैंक यू सो मच सर। This is your session. I'm just as another Thank part. you. Thank you for your inputs. We have two more activities. We will try to manage this also. Thank you. Can we have the other room, please? If someone is from a group that has not been represented yet, you might I think very open your important mic and and very important from the Abbas sir from the room 6. उनको भी जरूर लेकर आइए from the room 6. Yes, अब्बास साहब की बड़ी Abbas अच्छी here. इस्लामिक पॉइंट जी जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ अच्छा व्यू वाली जी थोड़ा सा आप जी, वो हाईलाइट करेंगे। मैंने वो एग्जांपल दी थी कि हम इधर एक स्कूल में क्लासरूम में बैठे थे, तो उसमें किसी टीचर ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात की जिसको मिसपर्सीव कर लिया गया, और उसमें काफ़ी जो है ना वो हंगामा आराई की तरफ सिचुएशन जा रही थी। तो मैंने उनको रोका कि आप ज़रा इस बंदे की क्लैरिटी तो ले लें कि इसने ये जो बात की है इसका कंटेक्स्ट क्या था, क्या इसने जो बात की है उसका कंटेक्स्ट यही है जो आप ले रहे हैं। तो वहाँ पे जी चीज़ें थोड़ी सी सेटल हुई, तो उन्होंने जब अपना कॉन्टेक्स्ट बताया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो कूल डाउन हो गई। और वो जो हमारे यहाँ, चूंकि आपको पता है मजहबी जो शिद्दत पसंदी है, इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। तो जी इस मामले में फिर ये देखना हमें पड़ता है कि जो अगले बंदे की परसेप्शन है उसको भी हमें ज़हन में रख के जो बात है उसको करनी चाहिए, ताकि वो अगर लोगों की माइंड सेट से ऊपर अगर बात चली जाए तो वो इसको एक्सेप्ट करने में एक तो बहुत ज्यादा तामल करते हैं, और दूसरा फिर उसको मिसपरसेप्शन हो जाती है और वो चीजें जो है वो तशद्दुद की तरफ जो है वो चली जाती बिल्कुल हैं। चली जाती हैं जी। अब इसमें क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को यहाँ इग्नोर किया गया इस चीज में, और बस अपनी फ्लो में कह गई। वी आर वेरी सेंसिटिव नेचर, और ब्लास्मी की जो बातें हैं वो तो कोई भी मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन एवरीबडी इज सपोज टू बी वेरी क्लियर एंड अबाउट दिस सेंसिटिव टॉपिक्स, कहाँ बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और अपने अल्फाजात की क्लैरिटी पे बड़ा गौर करना चाहिए जी। ये बड़ी सेंसिटिव मैटर है, बात कहाँ से कहाँ पे निकल जाती है। हमारे सामने वाकयात है सियालकोट का, किस चीज तरह लगाया गया उसके ऊपर, किस तरह उन्होंने ही उस पे जिंदा जलाया गया सबके सामने। नोबडी कुड एबल टू डू एनीथिंग दैट। अफसोस, बहुत अफसोस कि अपने हाथों में वो जजमेंट ली है, और एटलीस्ट जो एक कायदा कानून था उसको इग्नोर किया गया। बट हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने आप को उस सिलसिले में इग्नोरेंट समझते हैं, लेकिन इसमें एक कम्युनिकेशन का एक खला है, तो वो जो पुर नहीं हुआ। तो सर ये इस तरह की हमारी जब महफिलें होती हैं, पूरी हमें उसमें प्रैक्टिस और पूरे इल्म के साथ आना चाहिए कि वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा हमारा वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, जैसे मैं थ्योरी से ही आपसे रिलेट करूंगी कि वो क्या है, उसके मुताबिक बात करें, माहौल को अच्छा रखें, कॉन्क्रीट बात कीजिए जो कि दूसरा उसको एक्सेप्ट भी करे। सिंपली क्लेम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, प्रोवाइड द सोर्सेज ऑल्सो,
कि दूसरा कन्विंस कर सके. इफ आई एम टेलिंग द थियोरी एंड द लिंकिंग द थिंग्स विद दैट Halliday's सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स की थियोरी है जी लैंग्वेज की, तो उसके साथ लिंक कर रही हूँ, तो उसमें जो बातें उसने की थियोरी वैसे नहीं बनी, वो चीजें प्रूफ हुई हैं, और उसमें सिम्बियोटिक एनालिसिस की भी बात की गई. सिम्बियोटिक हर चीज एक इशारा देती है जो आपकी कम्युनिकेशन को शो करती है. तो कैन वी मूव टू फॉरवर्ड जी प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स जी अब्बास. थैंक यू. Are we through with all the groups? Start. Are we through? I think we are through with all the groups. Yes, Yes. I think so कि हमारे yes, I think so कि अब क्या हम एक और एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं मैडम. जी ग्रुप 2 रहता है अभी. ग्रुप 2 रहता है. जी 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 अच्छा, प्लीज. ग्रुप 2 जो रह गया. यस प्लीज. ग्रुप 2 में यस हम प्लीज. सिर्फ 2 मेंबर्स थे, मैं और मैम उमेला. एंड वी स्टार्टेड अवर कम्युनिकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ईच अदर, और फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जिनमें मेरा पॉइंट था कि एक तो जैसे मैम आपने बात की अडेप्टेबिलिटी की, कि बंदे के लेवल पर आके बात करनी है. जी सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टीचिंग, एंड सबसे पहले जो मुझे इशू आया था, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब. और मेरा जो फर्स्ट जो मुझे डिफिकल्टी फील हुई थी वो इंटरेक्शन थी. बिकॉज यूजुअली हम जब अपने स्टडीज के अंदर, अपने एजुकेशन के अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, सो वी हैव अ कॉमन एंड शेयर्ड काइंड ऑफ नॉलेज. सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम स्किप कर जाते हैं कम्युनिकेट करते हुए. एक शेयर्ड नॉलेज होता है कि हाँ इनको पता होगा. बट जब आप अपने छोटे लेवल पे जब इंटरेक्ट करते Sorry? हैं, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको हमें अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कि हम किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किस लेवल पे बात with कर रहे you. हैं. So with the passage of time, I am learning this thing, that how to adapt yourself in communication. Second, जो मैं मुम्मी लैला ने बात की, she shared an experience about a family event, जहाँ पर एक पर्सन की बात को जस्ट इसलिए मिसअंडरस्टैंड किया गया बिकॉज हर टोन वाज लिटिल हार्श. उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, बट उनकी टोन का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से उनकी बात को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया. एंड शी हैड टू इंटरवीन एंड क्लियर ऑल द सिचुएशन. So our point was adaptability, clarity, and tone, and how non-verbal communication affects our communication. अच्छा जी, tone and plus gestures that matters a lot. अगर आप का टोन, आवाज आपकी कैसी है, दूसरे के साथ आप अच्छी बात भी कर रहे हैं, बड़े एग्रेसिवली कह रहे हैं, तो आप बड़े घबराएंगे दूसरे से बात करते हुए, एंड यू आर गोइंग टू टेक द नेगेटिव इंप्रेशन आल्सो. यानी कि आपको अपने हर जाविये से अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि हम हर तरीके से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. किसी को कुछ कहते हैं दुख मत दीजिए. अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, सारी चीजें हमें इस्लाम भी सिखाता है कि खूबसूरती से बोलें, खुश इखलाकी से बोलें. nobody is going to win from others. आपने एक कम्युनिकेशन कैसे लैंग्वेज आपकी इजाद हुई है और आपने वो कम्युनिकेट करनी है, तो why not in a good way. It's all positive, और जितना करेंगे आप दूसरे का इत्मीनान जीतेंगे. तो gestures matters a lot. If you're going to pinpoint like a finger, that's going, the other person is going to be very aggressive, and from the mannerism point of view, that's very bad. One is not supposed to do this. If अगर आप किसी को इस तरह पिन पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन बाज दफा आप इस तरह करके भी किसी को ऐसे कर रहे हैं, तो इससे बड़ा फर्क आपको नजर आ रहा है, बड़े कर्टियस आप नजर आ रहे हैं. जस्ट लुक एट द जेस्चर. अल्लाह से आप मांगते हैं, आप हाथ उठा के मांगते हैं. आप किसी और को भी आप प्लीज बताएंगे, आप प्लीज बताएंगे हाउ मच effective this is. अगर कहेंगे would you please tell, just look at my finger, this is very bad. आप थोड़ा सा खुद ही आपको वो फील हो रहा है, और मेरे हाथ का जेस्चर भी आपको बता रहा है कि आपने कितनी इज्जत दी है दूसरे को. तो अपने आप को हमेशा अल्लाह ने कहा है डाउन टू अर्थ रखिए. दूसरे को अपनी जुबान से मत दे. जुबान का जख्म कभी भरता नहीं है, तलवार का जरूर भर जाता है. तो आपकी जुबान, आपके अल्फाजात मैटर्स अ लॉट. अल्फाजात असर रखते हैं, तो कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट. जी, आर वी थ्रू विद ऑल दिस? यस डॉक्टर सायरा, हमारे जी. जो प्रोग्राम में एक बड़ा पोर्शन होता है ना, हम सवाल जरूर अपने पार्टिसिपेंट्स के जहन में आते हैं ना, तो क्योंकि जी आपसे जी जी जी, कम्युनिकेशन प्लीज का प्लीज अभी ने प्लीज मौका मिला है,
तो मैं जी एक अनाउंसमेंट कर लेती हूँ कि अगर जी किसी के जी जहन में कोई सवाल है तो प्लीज आप हाथ रेस करें और आप सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें आप कम्युनिकेशन क्या होता है या कम्युनिकेशन आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम कैसे कैसे एक अच्छे करते हैं? कम्युनिकेटर के मशवरे के साथ ठीक कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन आप अपना हैंड रेस करें तो हम आपको मौका देते हैं, उसके जरूर बाद फिर साइड हम। बाय साइड यस कीजिए अपने आप के, हम उसी में जा रहे हैं, टाइम को भी मैनेज करेंगे, हम बिल्कुल यस साथ साथ बात देंगे। Yes, यस। please. Any question from anybody at a moment, or should we go to the other? Yes, Leila. मैम जी लाना। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि जब कभी मुझे कोई सवाल पूछें तो आई प्रिटी मच नो इन माई माइंड दैट व्हाट आई वांट टू से, लेकिन जब व्हेन आई ओपन माय माउथ तो ऐसे मेरे सारे मतलब सारे थॉट्स भी बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे खत्म करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो मुझे ये बताएं कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई रीड मोर, लिसन मोर, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यू सजेस्ट हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? मेमोरी लॉस हो जाती है Not जब आप, very lost, but yeah, maybe some sort सारे मिक्स अप हो जाता है। maybe. उसके लिए बेस्ट क्या है, अ पर्सन इज अ बेस्ट जज फॉर हिम और हर सेल्फ। उसके लिए क्या है, राइट इट डाउन द पॉइंट्स। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं ना, आप एक ह्यूमन नेचर है आपकी, मल्टीटास्किंग बंदा करता है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग में एक दो काम स्किप हो जाते हैं। राइट इट डाउन, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जब जाती हूँ, मैं जी 2 आवर्स है मेरे पास, फर्स्ट काम मैंने ये करना है, सेकंड एंड सो ऑन। तो आप अपने लिए इस तरीके से सिस्टमाइज, जरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, बड़ी आसानी हो जाएगी, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग योर वीकनेस। Very plus point. Accept your weaknesses. This is people, we are not going to do this. No, you are accepting, और इससे आपको problems हो रही हैं। So these are the ways how you're going to improve yourself. Write it down, practice it, और ज्यादा चीजों को शुरू में मत लीजिए, 3-4 चीजों के साथ रखें और अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। फ्रेश माइंड के साथ दोबारा जाइए और 2-4 कामों को पकड़ें, ऑर्गेनाइज, जरा टाइम टेबल बनाइए, everything is going to be okay. Thank you so much, ma'am. Yes, thank you, Leila. And थैंक यू next डॉक्टर सायरा जी। इकरा, अब आप सवाल पूछें और इकरा के बाद साथ आप भी क्वेश्चन पूछिए। इज लिटिल वियर्ड। पहली बात ये, मेरे साथ भी ऐसे होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं किसी से बात कर रही होती हूँ और बात करने के बाद मुझे याद आता है अच्छा मुझे इसको ये जवाब देना चाहिए। तो लिटरली मुझे बाद में होता है कि अच्छा मैं इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करती तो ज्यादा बेहतर था। हाँ हाँ, चलो तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ली, गुड, यू आर अ गुड और क्रिटिक आल्सो। सेकेंडली ठीक है, मुझे सवाल ये पूछना था, थोड़ा सा वियर्ड है। अगर हम कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए, कहते हैं ना हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, अब तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या है, अगर कभी हम इस सिचुएशन में फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें करना इसका वे आउट क्या हो सकता है? किस चीज का वे आउट क्या हो हर सकता एक है, बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तू क्या है, अब तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या है। तो इसमें आप बताना चाहते हो कि आप बाद में अपने आप को रियलाइज कर रहे हो कि मैंने क्या कहा और मुझे तो ये चीजें भी कहनी चाहिए थी उधर। हाजिर दिमागी का जरा जी जी इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, this is an art. We have already conveyed that the communication is the art. It's a tool and a very beneficial tool. And for learning an art and a skill, one needs to aggressively participate and practice it. Right? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप समझते हो कि अपनी गुफ्तगू, अपने अल्फाजात का इस्तेमाल जो है वो आप ठहर ठहर के करो। बाज़ जगह मैंने देखा है बड़ी लीनियंटली और बड़ी फ्रैंकली स्टूडेंट्स विदाउट रियलाइजिंग हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन। आप अपने एक एक सवाल, अपने एक एक लफ्ज को तोलो, आप ना कि आप क्या बोल रहे हो, थिंक फ्रॉम योर ब्रेन कि आपने ये लफ्ज बोला है, ये सेंटेंस बोला है, क्या ये मेरा ठीक है, क्या ये गलत है, क्या मुझे इसको और किस तरीके से मैं खूबसूरत अंदाज से बात कर सकती हूँ। इंसान पहचाना जाता है अंदाज़े गुफ्तगू से। हम लिखना तो बात की बात है, बोलते पहले हैं हम लोग, तो उसमें हमें महारत के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, हमेशा कहा जाता है
तो जरा सोचना पड़ेगा आपको और एहतियात बरतनी पड़ेगी, और अल्फाजात वोकैबुलरी को इन्हांस करना पड़ेगा अपनी, और कि क्या अल्फाज को आप चुन चुन के लगाए, बहुत बड़े बड़े अल्फाज ना लगाइए, ठहर ठहर के बात कीजिए कि दूसरे को ना दुख हो और आप उसको कि क्लैरिटी से बात आपकी पहुंच रही है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस आपको शिजा एंड साद, कैन वी हैव क्विक क्वेश्चंस? यस शिजा, यस जी, साथ और फिर शिजा। साद, एनीबॉडी, शिजा और जी साद? जी थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल टॉक। अभी हम My लोग pleasure. ब्रेकआउट रूम्स में भी गए ना, तो आई वाज टेलिंग माय ब्रेकआउट रूममेट्स कि इफ देयर इज वन थिंग दैट आई हैव बीन नोन फॉर माय होल लाइफ, वो ये है कि साद इज वेरी ब्लंट, वेरी आर्गुमेंटेटिव, और हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो बदतमीजी बन जाता है, चाहे वो घर हो। सिंस फॉरएवर आई कैन रिमेम्बर, यूनिवर्सिटी में आया तो टीचरों से आई जस्ट, तो उसके अंदर ना पीपल टेल आर्गुमेंट मी के स्टार्ट हो जाते हैं। yeah, I am just famous for being argumentative and being batamiz and blunt. So just how to like हाँ tone that down, this, and plus I हाँ, talk very loud and very fast, like मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो आराम से, भाई प्लीज आराम से बोल, I'm just way too fast and way too loud, इनाम and just अपने how to अंदर tone down that थोड़ा सा bluntness. कामनेस, अपने अंदर कामनेस को लाने की कोशिश कीजिए। आप ही हैं जो अपने आप को ठीक कर लेंगे। वेरी प्लस पॉइंट कि आपने अपने अंदर ये पॉजिटिवली आपने इस को लिया, जो वीकनेस है अपनी, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, कि आपने इम्प्रूव होना है। द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द illusion. If the illusion is there that has been created at that time और आप उसको clear नहीं कर रहे, that is a problem. If you want to excel and improve yourself, आपको वो illusion खत्म करनी है. It has been said by George Bernard Shaw, by the way, I quoted him. आप उसको देखिए, अपने इन अल्फाजात को अपने अंदर के मैंने तहम्मुल से बात करनी है, अपनी प्रैक्टिस कीजिए हर रोज। अपनी आप क्लास में प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आप उसमें के मैंने ये चीजें ही, मैंने कामनेस दिखानी है, स्लोली बोलना है, हर अंदाज से जो पॉइंट आपका है उसको क्लैरिटी से मैंने बताना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो आपने अपने अंदर आप में है कि आपने आपको इम्प्रूव करना है। जस्ट शो इट, जस्ट प्रैक्टिस इट, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। एंड डोंट लीव 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। Just think about it from that angle. Concreteness आपकी बात में होनी चाहिए, आप में एतमाद आएगा। Concreteness कैसे होगी? आपके सिर्फ क्लेम्स नहीं काम आएंगे। क्लेम क्या होता है कि आपने उड़ा दी, खुद ही बात कर दी, हाँ हाँ ये ऐसे ही हुआ करता है, हमारा माशरा ही ऐसे है। How can you say that आपका माशरा ही ऐसे? You are the person, the other person is going to fight with you. Please come with the concrete data. If somebody, this thing has happened, ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा हुआ है जिसने एग्रेशन लेकर वो आया है, तो आप में ये इंप्रूवमेंट होगी। अब आप देखिए, आप जिस ग्रुप सर्कल में हैं, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स को भी इम्प्रूव करते हुए चले जाएंगे। आप वो भी आपसे बड़ा असर रखेंगे। अफेक्ट होता है ना कल्चर में, आप उससे लेते हो, असर रखते हो, दोस्त दूसरे दोस्त से भी असर रखता है। तो ये सब चीजें अगर अपने अंदर आप पैदा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग भी इधर आ जाती है आपके, कि आप बोलने का आपने इशू किया है, तो पब्लिक स्पीकिंग के हुनर जितने हैं आपको वो रखने पड़ेंगे। कैसे आपने रखना है, अपने टोन को कैसे रखना है, प्रैक्टिस अगर करनी है, बाजू टेंशन भी होती है, करने से पहले 2-3 बड़े बड़े सांस लेकर जाएं, अपने आपने टेंशन को रिलीज करना है, कॉन्फिडेंस शो करना है, प्रैक्टिस शीशे के सामने करना है, ये ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, इंशाल्लाह यू विल बी इम्प्रूव। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट अ one day वर्कशॉप। एंड ये एक एक चीज है, एक है। अगर आप कहते हैं कि हमने ओरल प्रेजेंटेशन पे अलग करनी है काउंसलिंग, हमने किसी और पे कहते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन पे अलग करनी है, कोई और स्किल्स पे आपने बात करनी है, देयर आर लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स। आप उनकी डिटेल में जाएंगे, यू आर गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ द थिंग्स। आप कहेंगे ये तो हमें लैक करती है, तो क्या इसकी क्या जरूरत है? यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू बी अ क्रिटिकल थिंकर।
कि अपने आप को आपने हर एंगल से ठीक करना है। कैन वी हैव शिजा? थैंक यू। जी शिजा, आप पूछो सवाल। जी Thank you, शिजा। ma'am, for such a wonderful conversation. मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग बहुत ट्रिकी होते हैं अपनी बातों में, यानी कि जब वो बात कर रहे होते हैं उनके जी अल्फाज और शिजा, उनके gestures कुछ और कन्वे कर रहे होते हैं, क्या होते लेकिन हैं? अगर आप बहुत ट्रिकी होते हैं, मीन्स उनके कुछ और अल्फाज और करते हैं। उनके जेस्चर जो शो, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें, तो वो कहते हैं नहीं तुमने गलत समझा है, मेरा तो ये मतलब था ही नहीं। तो हाउ टैकल दैट सिचुएशन? अच्छा, अब देखिए मूड टू मूड भी होता है। एक बंदा आपके साथ लड़ा है, आपने डिफ्यूज कैसे करना है। अगर आप भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, बात तो और एग्जैजरेट कर जाएगी। अब अपने यहाँ हर एक का मिजाज एक जैसा भी तो नहीं होता। दूसरा आपको मारे तो आप भी दौड़ के ही करेंगे, लेकिन इसमें अक्ल की जरूरत है, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करने की जरूरत है। अगर आप डिफ्यूज करने के लिए उसके हाथ पकड़ ले, वो हाथों का इस्तेमाल कर रहा है और उसको पता है काम डाउन हो जाए, दो लफ्ज ही अच्छे तरीके से बोले, उसका रिएक्शन ना करे, यकीनन उसके मूड पे असर आता हुआ नजर आएगा। तो ये सब पॉजिटिविटी है जो आपने अपने अंदर लानी है, आपने एक्शंस के थ्रू शो करनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगी। हमने बहुत ऐसे हालात देखे हैं, एक बंदा बोलता ही जा रहा है, गुस्से से बोलता जा रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बड़ी काम कर रहा है। वो जितना गुस्से में आहिस्ता डेली लाइफ एज वेल। तो ये आपको एक हुनर स्किल अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। यस, इट शुड बी कैरीड ऑन जी विद एक्टिविटी 2। आई थिंक सो वी हैव टू विद द क्वेश्चन। मैडम, मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारी ये जो अभी सेकंड एक्टिविटी है ये कितना टाइम देगी? मेरी आवाज आ रही है जी, आपको? we are just तो going to be very very quick. I would like to be very very quick कि हम इसको 5 मिनट्स में करके उसके बाद फौरन से फीडबैक ले लें, और हमारे ग्रुप्स कम हो सकते हैं इसमें। आई थिंक अगर हम इसको इसी तरह कर लें, यहाँ पे अगर आप हम इसी तरह प्रेजेंटेशन कर लेते हैं एंड पिक एंड चूज कर लेते हैं, वो that's going to take yes long, right? Okay, yes okay. yes Now we are just going to think where we are going to have the open platform over here as an active listening. One will narrate a story and other will listen and relate that topic. Anybody. This is an open forum and personal experience or personal story. साइज है वो आपको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, जितने आपके क्वेश्चंस थे ना वो उससे हम जोड़ेंगे भी। तो साथ एनी स्टोरी आप नरेट कीजिए विच यू थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ, और आपके इंटरेक्शन हुआ है आपके फ्रेंड्स के साथ, उसमें कोई ऐसा इशू और स्टोरी नरेट कर दीजिए हमारे लिए छोटी सी, और हम उसमें से दूसरे से पूछे क्या मीनिंग ले रहे हैं, और फिर देन वी आर गोइंग टू क्या इसमें यही मकसद था जी। अच्छा, कोई वॉलंटियरली अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो कर ले। अबाउट Anybody? जी डॉक्टर साहब Anybody? जी डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी मोहम्मद ताहिर जी डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जान। मैडम, मैंने जो है वो इस हवाले से एक बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है, एक स्टोरी भी है और इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा कि मैंने जब 2005 में पहली क्लास मुझे मिली पढ़ाने के लिए एमए के फौरन बाद, तो वो एमए ही की क्लास थी। तो मेल का ज़्यादातर ये होता है कि अगरचे हम पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे रेगुलर, लेकिन मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू में कम्युनिकेट आपस में कम करते थे। यानी हम लेक्चर सुन तो लेते थे उर्दू का, अरबी का, अंग्रेजी का भी इवन, लेकिन वो जब हम पढ़ाने के आपस में गुफ्तगू करते थे तो वो पंजाबी में करते थे। और जब मैं पढ़ाने के लिए गया हूँ क्लास में, तो जाहिर है वो लेक्चर 1 घंटे का उर्दू में देना था। तो मुझे 2-3 दिनों में ये एहसास हो गया कि ये मसला मेरे साथ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, और ये कोशिश करता हूँ अपने आप को जो है वो क्लास में, जो क्लास भी मास्टर लेवल की है, बहुत स्टूडेंट्स भी मुझसे बड़े थे, मैं पहले साल ही चला गया था पढ़ाने,
तो मैंने फिर उसका हल ये किया कि मैं शीशे के सामने खड़ा होता था और एक स्टॉप वॉच साथ रखता था और मैं देखता था कि मैंने 1 मिनट में कितने अल्फाज बोले। तो मैं फिर उसको काउंट डाउन करके उसको जो है वो कम करता था और वो रेपिटेशन में जाता था कि मैं अगर 1 मिनट में कम करते करते उसको इस लेवल पे ले आया अपनी टोन को कि जिसमें जो था मैं भी कॉन्फिडेंट था और वो बात मुझे खुद भी समझ आ रही थी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बन गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बरस बरस से फिर वो एक अच्छा जो था वो लेक्चर कह लें या ऐसा लेक्चर जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा हो, वो ये हुआ। तो ये एक चीज थी जो मेरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन पर्सनल परफेक्ट, मेरे आपने वो साथ प्रैक्टिस वाले फॉर्मूला पे आपको ने फॉलो किया। जी। Excellent, sir. Can we have Shiza? Shiza, could you please open your mic? Shiza, Leila, anybody? ऐसे आप कर लीजिए, पता नहीं अच्छा Leila has opened her mic. जी एहसान। Leila. जी 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 Leila, could you please brief what Dr. Saab has said? उनका memorable. We are switching the roles. Could you please give us a feedback on that? What sir has said? I'm so sorry, ma'am. I lost him. Okay, no problem. एहसान, आप हमें साथ थे हमारे? एहसान, आप हमारे साथ थे? जी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन थोड़ी सी हुई है, तो अगर समझ रिपीट कर गए दें होंगे। थोड़ा सा। That is again थोड़ा सा lack of अच्छा मैं communication मैडम हमारी मेरी होगी। This is one मैडम of the मेरी example. हाँ मैडम मेरी आवाज आ रही है ना, तो मैं बता देती हूँ कि आप सर ने बता बताया दीजिए। है। जी हाँ, जी सर जी ने जी। बताया है कि वो पहले जब पढ़ते थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो आपस में पंजाबी में कम्युनिकेट करते होते थे फ्रेंड्स जी के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको पढ़ाने का मौका मिला, तो उनको लगा कि ये वाली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, बिकॉज जो वो बच्चे पढ़ा रहे थे वो मास्टर लेवल से के थे, और जाहिर है वो एज में अच्छे खासे थे, तो मतलब स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, पंजाबी भी वो उनके मुंह से निकल सकती है, बिकॉज ही वाज इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग पंजाबी। तो देयर पंजाबी। फोर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और वो शीशे के सामने बोलते रहे और उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर किया, और तब से अब तक वो नॉन स्टॉप जो है ना उर्दू इंग्लिश बोल रहे हैं पंजाबी बोल छोड़ रही दी है उन्होंने। अच्छा, तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर की जो प्रैक्टिस है वो काम आ गई कि सर ने अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव किया। एनीबडी एल्स, दोज हु वांट टू नरेट देयर स्टोरी, क्या हम उसका रोल स्विच ओवर करें? ऐसे ना आप बता दीजिए जो मेरे सामने आ रहे, और जी साथ जी। कैन कंट्रीब्यूट इन इट, एनीबडी? अच्छा मेरे साथ ये हुआ था मैम कि मैं एक दफ़ा गया था एक एक्सचेंज प्रोग्राम में यूनाइटेड जी स्टेट्स। जी तो वहाँ पे भी यही इशू मेरे साथ आया था कि एक लैंग्वेज बैरियर का ही इशू था कि मैं मतलब एक जगह पे प्रेजेंट कर रहा था। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, और जो मैं कहना चाहता था उसके मतलब बिल्कुल एक उलट मतलब ले लिया गया था मेरी बात का। तो फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी उस बात की, और फिर ये गुड मतलब रियलाइजेशन। अच्छा, जी जी। आपका इधर जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है ऑडियंस एनालिसिस, वो आपका नहीं था। वो उस पे ध्यान अगर रखते, और इनिशियल फेजेस आपके जब प्रोफेशनल फील्ड में होते गलतियां तो होती हैं, तो हम्म गलतियों से तो बंदा सीखता है। तो ऑडियंस एनालिसिस आपका कम था। आपके हम्म। साथ मैं एक शेयर करना चाहूंगी एक एडवर्टीजमेंट की, ऑन अ लाइटर साइड, कि एक जी पेप्सी का कोका-कोला का ad बनाते हैं बाय वेस्टर्न कंट्रीज में, और वहाँ डॉक्टर शिमाला आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर हाँ सायरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, गैस कोई इंटरनेट इशू है। वी हाँ लॉस्ट यू इन द लास्ट 30 सेकंड्स। यस, मुझे भी लग रहा था कि मुझे लग रहा है मुझे नहीं आवाज यानी मेरी साइड पे इंटरनेट इशू है, तो डॉक्टर सारा की आवाज नहीं आ रही। आई थिंक शी हैज ड्रॉप्ड। नहीं आई एम बैक नहीं जी, है। आई एम बैक जी। ओके ओके। मुझे आ रही है आप आवाज, अब आ रही है आवाज। जी मैडम।
बैक टू द वो एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको ऑन लाइटर साइड बता रही थी, कोकोला का एड जी। वेस्टर्न साइड में विजुअल्स में वो बना हुआ है, एक बंदा भाग रहा है, थक गया, और वो लेट जाता है, उसके बाद उसको पिलाया जाता है जी कोक, फिर वो फ्रेश अप हो जाता है, फिर वो भागने शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके से वो एड बना हुआ है जी, वो बड़ा तो बड़ा उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और पूरा वो अपना इंटरप्रेट करते हुए मीनिंग देता हुआ नजर आ रहा है। जब वो अरबिक कंट्रीज में आते हैं, वो वही एड उसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं और वो फेल हो जाता है। अब उसका जी ये फेलियर का क्या मसला है, उसमें है कि जी बंदा बड़े अच्छे तरीके से तो वो फ्रेश जा रहा था और वो थकता है तो वो कोक पीता है और उसके बाद वो गिर जाता है। अब वो गिर गया यानी कि इसमें तो कोई पॉइजन है या क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है। क्योंकि देखिए अरबिक कंट्री में जो खताती है वो स्टार्ट होती है राइट साइड से। अब उनका जो ब्रेन था वो सब चीजों का जो इंप्रेशन है वो राइट साइड से वो करते थे। अब जो वहां से जब वो आया बाहर से, तो वो आया लेफ्ट साइड से, ABC, ऑन द लेफ्ट साइड से हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उन्होंने परसीव ही गलत किया कि वो बंदा थका हुआ है, गलत है, तो वो सारा अप एंड डाउन जब हो जाता है चीजें, तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है अरबिक कंट्रीज में आके। क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ के इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और कल्चरल इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उधर जाके उन्होंने उस कल्चर को पढ़ा नहीं कि ये सब चीजें तो अरबिक उर्दू वाली साइड से लिखी जाती हैं। इन्होंने तस्वीर का जो मुवाजना है वो उल्टा ही किया है इन्होंने, यानी कि वो फ्लॉप हो गया। वो फ्रेश क्या होना था उस बंदे ने, तो ये यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है इसको पीना नहीं चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स, so there is a requirement to learn from the culture. वहाँ क्या कहता है, अगर एक एड है आपका, हम एग्जाम्पल एड से लेते हैं, उसकी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन इन द डिफरेंट कल्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। इफ वी आर गोइंग टू शो अ वुमन डूइंग स्मोकिंग इन पाकिस्तान, it is not going to be acceptable at every cost. Why? Our culture is different. It is not going to be acceptable. We are from the Islamic Republic of Pakistan. Is the other thing, the women are taking cigarettes secretly, but they cannot do it openly. When it's going to go abroad, वहाँ क्या होगा, वहाँ जाके they can do it openly. That's their culture. That is 100% acceptable, but it is not over here. We have to study our culture. जहाँ अब आपकी डॉक्टर साहब ने हमसे शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और ने भी किया, तो यहाँ क्या हो गया, उस कल्चरल आपकी जो इंटरप्रिटेशन और आपका जो नॉलेज था वो नहीं था, राइट? वहां हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर वहां क्या होता है, कम्युनिकेशन वीकनेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सो उसके लिए हमारा यहाँ लैक कर रहा था कि हम उसको समझ के जाते, कल्चर को समझ के जाते। किसी कंट्री में आप जाते हो बाय की, तो आप उसके तौर तरीकों को समझते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मलेशिया का मैं आपको बताऊंगी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट ओवर देयर, हम लोग जहाँ किसी को इशारा करते हैं तो हम उंगली से कर रहे हैं, और एज सच तो ये बैड मैनर्स है, लेकिन ये क्या पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है, हम उंगली से ही करते हैं। अब ओवर देयर वो इस साथ थंब से करते हैं। दैट्स वेरी डिफरेंट। मैंने थंब वाला क्या, हम तो थम्स अप करते हैं, कहते हैं ये इशारा कर रहे हैं। तो कल्चर इज डिफरेंट। उनकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को देख लें, आपको वो हंसी आ जाएगी। दे सो सिंपल पीपल। मोनार्की इज ओवर देयर। अच्छा जी, कोई सीरियल फॉर एग्जांपल लॉन्च हुआ है और वो अपने रॉयल्स को किस तरीके से इज्जत देंगे, एक सीरियल के प्याले के अंदर उनका हेड लगा देंगे और वो हंसती हुई क्वीन नजर आ रही है। इट्स लुकिंग स्टूपिड इन आवर कल्चर। हम कैसे, दिस इज नॉट रिस्पेक्टफुल। दैट ओवर देयर कि हमारा जी मेन प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो रहा है एंड सो मच इंपॉर्टेंट एंड द क्वीन इज ओवर देयर, यानी कि क्वीन को रिकमेंड करे। तो एफिलिएशंस, interpretations are very important. Over here, if we're going to accept it, हमें तो कुछ सू कर जाएगा. Over there, but that is 100% acceptable. You know, the cultural, intercultural communication and interpretation is very important. और आप इंटरकल्चरल की बात करें, आप कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि one is required to get into the details of that. There is a need of the deep description and the thick translation of it as well.
So there's a full-fledged topics of the thick translation and the deep translation. तो ये सारी फॉर्मूलाज और ये जो बातें हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमने शेयर किए हैं, ये उसके ऊपर 100% अप्लाई होते हुए नजर आ रही हैं. तो we have last 25 minutes. तो should we जी wrap नो up this? जी 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 हमारे जी. पास अब जो है साथ हमारे पास अब लास्ट 5 मिनट्स है ना डॉक्टर सायरा. हमारा ऑफिशियली जो है वो 9:30 पे हम इसको क्लोज करते जी हैं. मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हम क्योंकि बिल्कुल हमारे पास जी जी स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल. हम आपको इंशाल्लाह अगले एक और सेशन में देखना चाहेंगे. और जो हमारी बाकी एक्टिविटीज रह गई हैं हम उसमें इंशाल्लाह से हम उसको डिजाइन करेंगे. तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप जरूर जो है ना, करेंगे. हम जो जो लोग हमारे साथ हैं आप उनको थोड़ा सा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि वो कैसे जी कम्युनिकेट करें अपनी बात को. मतलब हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ, ये जो टोन और ये जो नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, ये जो मतलब एक अग्रेशन है और उसको कंट्रोल भी नहीं, मतलब जी कंट्रोल करने की कोशिश में भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता. और ये इस पे आप हमें बताएं कि कोई ऐसी टिप्स जो हम इसको बेहतर कर सकें, अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकें कि आप तरह से अच्छे तरीके से एक ऐसी बात जो दूसरों को पसंद नहीं है वो भी हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो बिल्कुल. अच्छा आखिरी जी, I'm चंद going मिनट्स. to जी 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 I'm going to quote some annoyed भी होती हूँ उनपे. फिर मैं कहती हूँ बेटा why you are in such a tone. सिर्फ आते हैं अपनी मर्जी से क्लास में एंटर हो रहे हैं. They should show some mannerism towards the teacher. मैं कहती हूँ बैचलर्स लेवल तक आप आगे हैं, you don't know the manner कि आप टीचर से पहले मौजूद हो. ये चीजें तो हमने तो टीचर से पहले मौजूद होते थे, फिर आपने बात कैसे करनी है. अच्छा, एक मैसेज मुझे रिसीव होता है जी व्हाट्सएप पे. लुक एट द टाइम. 12:30 1 बजे मेरी एक स्टूडेंट थी, सीनियर 10th सेमेस्टर की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया. डिफरेंट डीएसएस के साथ में वो ले रही थी, उनका वो कोर्स रहता था. एंड मेरे पास वो उनके कजन आते हैं. मैंने कहा वो किधर हैं जिन्होंने ये कोर्स पढ़ना है. जी वो आ रही है कराची से. हाफ ऑफ द सेमेस्टर इज गॉन. एक अभी हमारा मिड टर्म था, तो who you are and how you are communicating with the salam. Here is a very, very disrespectful communication. I don't reply on that. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैं कौन एंड आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, पहले तो आप मुझे ये बात बताएं. आपको सलाम करना चाहिए था. सॉरी सॉरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मैम. सच अ डिसरिस्पेक्टफुल. क्या आप अपने और बदतमीजी तो नहीं, लेकिन उसको पता नहीं है, अनइंटेंशनली उसने ये कम्युनिकेट किया. ये वाकया मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस. देन मैंने उनकी डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रोग्राम को दिखाया जी जैसे लुक एट दिस जी. वो स्टूडेंट क्या कह रही है, मैं जी जहाँ जॉब करती हूँ कराची में, और एक कोर्स के लिए मैंने क्या आना है, मेरी डिग्री तो कंप्लीट हो रही है, बस इस कोर्स की वजह से मेरी डिग्री मुझे नहीं मिल रही. मैं कहा देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव नेवर अलाउड यू to do it and we are not here to serve you. You don't know you have to sit in front of me and have to attend all the classes. So sorry ma'am. She took the decision on his own. ये आजकल की जनरेशन है जी जो काम कर रही है. तो इस पे मैंने तो काउंसलिंग की एंड इसमें 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे. आई जस्ट कन्वेड दैट जी दिस इज द थिंग, दिस इज द कम्युनिकेशन, द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट. एंड आफ्टर 10th semester she doesn't know how to communicate with the teachers and how to she doesn't know कि उसने आके क्लासेस भी अटेंड करनी है. these are the things जी. ये छोटी छोटी चीजें अगर आप में एहसास, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी आए कि दूसरा कैसे आपको ले सकता है. क्या आर यू टॉकिंग एंड डीलिंग विद योर पेरेंट्स लाइक दैट. आजकल की जो मैंने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट यंग है एंड वी हैव अ फुल रोल कि हमने उनको करना है जी
ग्रूम करना है, बट एक हद तक ग्रूम हो सकते हैं। 4 months का हमारा सेशन है और इतने ग्रूम तो नहीं हम करेंगे कि हम उनकी जिंदगी ही तब्दील कर दें, लेकिन हर चीज जरूर बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो उनको बचपन में पता होनी चाहिए थी, जो स्कूल और घरों में, वो यहाँ इस बैचलर्स लेवल में बात कर रहे हैं। मोस्टली आजकल जो बैचलर्स है जी, वो यूनिवर्सिटीज में हमें बहुत ज्यादा कर रहा है, तो वो ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। प्लीज थिंक अबाउट फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव। एक टीचर अगर आपको बता रही है, सिर्फ वो टीचर के साथ आपने ये बात अपने आप को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है कि एक ही टीचर के साथ करें, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए। यू हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑन एवरी टीचर। तो ये वीकनेसेस जी हैं जो हाईलाइट सिर्फ एक टीचर नहीं कर रही, सारे कर रहे हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट होगी तो बहुत ही फर्क हमें नजर आएगा अपने कल्चर में। टुडे एट द एंड ऑफ द सेशन जी, थोड़ा सा मैं इसको वाइंड अप करते हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप पे। द टीचर हु इज एज अ लीडर, वो कैसे आपको कम्युनिकेट कर रही हैं और कैसे आपको ग्रूम करने की कोशिश कर रही हैं। आर यू टेकिंग हर पॉइंट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? आप उनके अगेंस्ट तो नहीं होगे। एग्रेसिवनेस भी नजर आता है, बाज लोगों को बताया जाता है वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, लाउड भी हो जाते हैं, तो उसके लिए कामनेस की जरूरत है। इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट है कि आपने बाकी दूसरा बंदा आपको ग्रूम कर रहा है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, और डेफिनेटली वो एक लीडरशिप कम्युनिकेशन जो आपको देगा, वो आपका लीडर, वो बड़ी इफेक्टिव होगी। And effective and the transparent communication allows team members to connect and clear your vision. And how to improve your leadership communication? हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो कि हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू आज हमने इन्फोर्स की हैं, उसकी एक्सेप्टेंस लेवल शुड बी देयर। फाइंड अ मेंटोर, फेल, इफ यू आर गेटिंग फेल, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। शाहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, बार बार खड़े हो आप होंगे। बस अपना मोराल अपना हाई रखिए, गोल्स को सेट कीजिए, हार्ड स्किल्स को आप लर्न कीजिए, फिर चैलेंजेस आर गोइंग टू बी, जैसे हमने डिस्कस किए हैं। बात जगह होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में टाइम जोन्स हैं, आपके बिजनेसेस चल रहे हैं, कोई ऑफिस वर्क्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन का आप में इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा, दैट कैन बी लैक ऑफ फीडबैक, lack of standardized communication structure, poor cross-team coordination, poor communication skills, etc., etc. They're going to be the factors. A lot of other factors are also involved in it, जो आपकी weak communication को challenge कर रही हैं. उसके बाद improving lesson, always take a feedback. आपके जो पेपर्स हैं, जब आप क्वेश्चंस आंसर्स जब लिखते हैं, आप समझते हैं कि बस मार्क आ गए एंड यू डोंट आस्क फॉर द फीडबैक, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव स्टेप। ऑलवेज ट्राई टू लर्न। अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं जो मैंने देखा है वो इम्प्रूव करते हुए नजर आते हैं, मैम हमें थोड़ा सा और ये बताएंगे कि मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसमें मेरे मार्क्स कहाँ कम है। बाज बच्चे लड़ते भी हैं कि मैम आपने कैसे दिए ये मार्क्स। उनकी फिर मार्किंग का हम उनको स्टाइल रियलाइज कराते हैं कि आपकी कहाँ क्वालिटी कम थी आपकी। So there is no need to fight, just realize and improve from the other point. So communication and the leadership in a nutshell go hand in hand. Without the ability to communicate crucial information, the team members find engaging, effective leadership is impossible. सो कम्युनिकेशन की जहां भी हम बात की जाती है, लीडरशिप की बात की जाती है, अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, आपकी मैसेजेस की बात की जाती है, तो दैट इज कम्युनिकेशन एंड मेकिंग इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल communication. We have to get into the 7 C's of communication. Nothing in life is more important than the ability to communicate effectively. Everything is going to be clear when we are going to learn how effective we are, and are we setting and tackling the points as per our aims and goals. When our aims and the goals are going to be clear, nobody is going to beat us. So that is a wrap-up session. Anything else, if somebody wants to say anything, that's more welcome, but our time has been ended.
थैंक यू डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा इंगेजिंग और बड़ा जबरदस्त रहा। उससे पहले Lovely. भी हमारा जो टॉपिक था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी बातचीत होती रही। तो हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। सॉरी सर को कोई Thank you इमरजेंसी थी so फैमिली much. में, इसलिए सर जितने No एक्साइटेड issues. थे और जब सर बार बार हम सबको पुश कर रहे थे कि भाई टाइम से आना है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके हैं। और उसके No लिए issues. आपसे हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि No. सडनली उनको इमरजेंसी हो I गई थी। know. I know. लेकिन थैंक यू We can understand. We can understand, and यस। it's great to be here. And कि मैं इसमें अपना लगा सकी जी, टाइम भी मैंने मैनेज कर लिया। आज ही मेरे साथ भी ऐसा इशू हुआ कि स्ट्राइक कर दी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन वो हम 1 घंटा लेट हुए। एट 6 o'clock आई केम बैक और खाना वाना खा के मैंने कहा जी 8 o'clock आई हैव अ वर्कशॉप एंड आई हैव टू मैनेज इट। तो everybody was in the crisis today, I guess. तो अब I don't know इससे यस। ज्यादा लेट होता तो मेरे लिए भी क्राइसिस हो जाता आज बना हुआ। So lovely, थैंक we यू have मैम, all बहुत made मजा it. आया। यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर मैम, थैंक यू सो And मच। बहुत ही lovely, मजा आया lovely to have you आपके। all here. Lovely, my honor, and I enjoyed. Saad, थैंक यू thank मैम। you. Thank you, Saad, for IT facilitation. I can judge you are a good IT थैंक यू मैम। person.